So what is object destructuring? So object destructuring is nothing but whenever you want to store value of any key of an object in multiple variable simultaneously. What does it mean? So let's say I have defined one object over here, right? And I want to show, I want to store this value like obj.address in address variable. And if you want to store any value from any object like obj.address to address variable, and for example age means object.age in any another variable, then you can do something like this. And repeatedly you have to write in this way, right? Another variable like age or any my age, any variable name you can given here. My age, and the value will be taking from object.age. It will take value from object.age and I want to store it over here. So if I want to store multiple values from an object in multiple variable, then this is the way, traditional way, right? But if you want to store a multiple value in multiple variable at a time from the object, then you can use the below way. Look at this. Did you see? So let, I have just declare the variable with let keyword, and within curly braces, because I am getting data or copying data from object, then you have to use something like this, right? Curly braces, inside curly braces, you can put the name of the object, name of the variable in which you want to store data, right? And in the right side of assignment, you can put the object. Then it will automatically copy the value of hobbies and name and store in hobbies and name variable. These are nothing but the variable, right? These are not keys of an object. These are value of, these are the variable, multiple variable you can store over here, and you can copy the values with the same name as the key of the object. देखो यहाँ पे जो नेम है ना, ये वेरिएबल नेम, इट मस्ट बी सेम एज द की ऑफ द ऑब्जेक्ट. हॉबीज एंड नेम आर द सेम नेम एज द की ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं हम, एट दैट टाइम मेक श्योर द वेरिएबल नेम should always be same as the key of the object. You cannot change the variable something like this, but in this case you can see I can define whatever the variable name according to my own requirement. मेरे को जो भी रखना है, I can write the name of the variable according to me. But here in destructuring, you have to, it is necessary, it is required, otherwise it will not store the value. The name of the variable inside this curly braces must be same as the key of the object. Is it clear? So automatically what it does, automatically it will take the value from name and store in name, and value from hobbies and store in hobbies variable. Now you can use it later on, you can print directly as a hobby and name, right? Clear? So it is destructuring, it is called destructuring. So here also what you can do, if you want to change the sequence also, it doesn't matter. मैंने क्या किया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, बट इट डजंट मैटर. बट नेम मस्ट बी सेम. जैसे ऊपर पहले नेम था और फिर हॉबी था, बीच में एज एड्रेस था, उसमें कोई लेना देना नहीं है. बट ये नेम के साथ मैच होना चाहिए, वो कोई भी सीक्वेंस में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? So what is the motto of destructuring? If you want to store multiple values to multiple variable from an object, then we can use object destructuring. Clear? यस सर. सर इस पे
एक जो मेथड बताया थे सर, स्क्वायर ब्रैकेट में लास्ट अंडरस्कोर नेम वाला, स्पेस नेम जैसे हो, तो वैसे वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं क्या? सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, टेल मी। सर वेरिएबल नेम अगर लास्ट स्पेस नेम करके है, जैसे एक बार बताए थे सर, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग डिफाइन करते थे, नो तो नो वैसे वेरिएबल को भी? no, it will not work. You say something like this, like name, and for example I have a फुल नेम, यस सर। last name colon, right? So you said that how can I take it यस here? सर। नहीं यस सर। होगा. Why? Because again these are variables. I have already mentioned variable name cannot be something like this. Clear? क्योंकि ओके सर। ये सब क्या है, वेरिएबल नेम, राइट? तो इसको वेरिएबल नेम को हम कभी ऐसे नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिफाइन ए वेरिएबल समथिंग लाइक दिस. इज इट पॉसिबल? नो. तो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकता. इफ यू वांट टू स्टोर दिस वैल्यू इन वेरिएबल, देन यू हैव टू डू द ट्रेडिशनल वे लाइक दिस. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एड्रेस you can use what? Last name, right? Then you can create the variable like last name. You can store it over here. Clear? Any doubt? सर अगर स्ट्रिंग में लास्ट नेम ना देके डायरेक्ट ऐसे ही नेम के नीचे, Then हो सकता है. If your key follow all the rules for a variable declaration. जैसे variable declaration का rules होता है digit should not be at the beginning of the name, right? जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन का जो भी रूल है, इफ इट फॉलो दैट, एवरी की फॉलो दैट, देन इट विल वर्क, नॉट एन इशू. ओके ओके? स्पेस काउंट नहीं होगा, मतलब सर नहीं होगा. स्पेस नहीं कर सकते. वेरिएबल नाम कैसे होता है? वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन की रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपको पता है? वो यस सर, वो इंटीजर फॉलो फर्स्ट में नहीं होना चाहिए नहीं होना और चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते. राइट? तो वो सब फॉलो होता है, देन वेरिएबल वी कैन डू दिस. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस बहुत सारे यूज आता है. अभी से चालू हुआ आपका एक्चुअल प्रोग्रामिंग, राइट? फंडामेंटल खत्म हो गया. ये जो फंक्शन सब्जेक्ट, ये भी फंडामेंटल्स का डिटेल्स व्यू है. ठीक है? अब दिस क्या है? एरर फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन? फर्स्ट डिफरेंस वाज द सिंटैक्स, राइट? सेकंड डिफरेंस वाज what is the second difference? सर फंक्शन Can't नहीं use लिखना पड़ता. alternate. नहीं, this is first difference, this Sir, syntax. it cannot be argument access कर सकते. एग्जैक्टली, आर्गुमेंट करके जो डिफॉल्ट एरे है कोई भी फंक्शन के अंदर, इट इज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड एरो फंक्शन. क्लियर? द थर्ड वन इज दिस. आई विल एक्सप्लेन. सो let's see what is this. This always refer to current object. Always remember, ऑब्जेक्ट के अंदर ये दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है. रिमेंबर, this always refer to current object, but in case of arrow function, we will see later on, in case of arrow function it will not refer to the current object. अभी मैं बताया था what are the different way to creating the object, to create the object. One is normal literal notation like this, one is constructor function which I will explain later on, and third one is using class, right? सो अभी के लिए ये ऑब्जेक्ट कौन है? ओबीजे. अभी दिस किसको रेफर करेगा? देन ओबीजे को रेफर करेगा. अभी मैं ये मेथड जैसे कॉल करूंगा, ये मेथड एक्सेस करूंगा, तो ओबीजे डॉट गेट नेम, इट विल वर्क,
it is not a big deal. But inside this function, if I want to access any variable which is defined inside this object as a key, then ये फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल नहीं है, राइट? वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, बट ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, ये मेथड है, ये ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, राइट? बट इट इज नथिंग लाइक द फंक्शनल स्कोप. देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया तो मुझे ये ऊपर डिफाइन कर दिया तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो इधर एक्सेसिबल हो जाएगा फंक्शन के अंदर. ऐसा नहीं है, राइट? ये ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एक की के अंदर की वैल्यू है, ये की का दूसरा वैल्यू है. तो की का कोई भी वैल्यू को मुझे मेथड के अंदर, इस कॉल्ड मेथड और फंक्शन, राइट? ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को मेथड बोलते हैं. मेथड के अंदर कोई भी सेम ऑब्जेक्ट का की को एक्सेस करने के लिए हमको दिस रेफर करना होता है. दिस मतलब वो ऑब्जेक्ट को रेफर करना ही होता है, राइट? अभी मैं ये प्रिंट करूंगा और आपको दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं. Go to the console and refresh it. So my name is CK. If you want to directly access this one, then nothing is display over here, right? Name is not there, right? You can see name one is not defined. दिख रहा है? Name one is not defined. Why? Because it cannot, there is no declaration of this variable, because this one is treated as variable, right? तो ये किसी के अंदर भी नहीं मिल रहा है, तो आइदर हम उसको रेफर करनी पड़ेगी, क्या? obj डॉट नेम वन दिखेगा और this dot. So this always refer to the current object. तो ये फंक्शन कौन सी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? ये जो मेथड है गेट नेम, ये गेट नेम इज ए मेथड, ये किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर टू obj ऑब्जेक्ट, right? So this also refer to obj object. So this dot name one means it refers to obj object, right? So this always remember, this always refer to current object, this always refer to current object, right? तो मैं यहाँ पे जो obj डॉट गेट नेम किया, तो ये इसके अंदर दिस करके जो भी लिखा हुआ, ये कौन सी किसको रेफर करता है? ये obj को रेफर करता है, क्योंकि ये मेथड जिसके अंदर है वही ऑब्जेक्ट को वो रेफर करेगा. क्लियर? यहाँ पे आइदर हम obj भी लिख सकते हैं, तो ये स्टैटिक हो गया अभी, तो भी डिस्प्ले होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, या दिस लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो भी ये काम कर रहा है. क्लियर? सो दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. आइदर यू डिफाइन ए ऑब्जेक्ट और डिफाइन ए ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास, ऑलवेज दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट. बट एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूं मैं. अभी रिटर्न के बाद थोड़ी कंसोल होगा, नहीं होगा ना? नो सर, रिटर्न के बाद एग्जीक्यूट. हाँ, कंसोल डॉट लॉग में दिस प्रिंट करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये दिस किसको रेफर कर रहा है. देखो दिस किसको रेफर कर रहा है? पूरा ऑब्जेक्ट. यस और नो? यस सर. अब मैं इसको क्या करूंगा, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ. एरो फंक्शन कैसे करूंगा मैं? ये फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, बीच में फैट एरो आ जाएगा. हो गया एरो फंक्शन मेरा रेडी. अब मैं दिस रेफर करता हूं तो ये किसको अब रेफर करता है? अभी करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम वन करके कुछ मिला नहीं, तो वो क्या करेगा? अनडिफाइंड दिखाएगा. यस. क्लियर? अभी यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों दिखाया? यहाँ पे नॉट एन वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड क्यों नहीं आया? बताओ.
जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया था, फंक्शन के अंदर मैंने दिस रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है, एरर दिखाता है, राइट। ये एरर दिखा ना, नेम वन इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर दिस रख देता हूँ, और इसको सपोज दिस यहाँ पे नेम वन के जगह में नेम 2 3 कर देता हूँ, राइट। तो ये एरर नहीं दिखाता, अनडिफाइंड दिखाता है। क्यों? सर क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। तो डिक्लेयर डिक्लेरेशन नहीं। डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर ही दिखाएगा ना। फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर करने जाते हो, एक्सेस करने जाते हो, वो डिक्लेयर नहीं किया होता है, तो इसमें क्या होता है, एरर आता है। बट यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? जैसे पहले नहीं दिखा रहा था, ये दिस निकाल देता हूँ तो एरर नहीं दिखा तुमको। अब क्या दिखा, एरर दिखाता है। देखो, नेम 3 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज एन एरर। बट यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दिखाता है, कोई बता सकता है? मैंने कल ही बताया था, डे बिफोर यस्टरडे। क्योंकि सर कोई भी ये करंट ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर उसमें हो रहा है नेम बट थ्री नाम का नहीं कोई करंट ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या होता है, व्हेन यू रेफर टू एन की इन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज नॉट देयर। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ console.log के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसमें सपोज console.log मैंने लिखा, और इसके अंदर obj.abc कुछ भी लिखूंगा, तो मैंने बताया था क्या, वो ऑब्जेक्ट वो की नहीं होगा तो अनडिफाइंड दिखाता, एरर नहीं दिखाता। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की नहीं होगा तो एरर नहीं दिखाता, वो अनडिफाइंड दिखाएगा आपको। नहीं बताया था? बताया था। तो आपको याद क्यों नहीं है? अब वीडियो में एक एक चीज को बार बार सुनो ना, तुम याद नहीं होता तो फिर। मैंने कितनी बार एम्फासिस देके बोलता हूँ, जो चीज एम्फासिस देता हूँ उसको स्पेशली बोलता हूँ, 3 4 5 बार बोलता हूँ मैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट, ये रेफर, ये क्या कि कोई ये करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल को रेफर कर रहा है, right? That's why it will not throw an error, it will undefined, it will क्या करेगा ये, it will show undefined, not an error. Clear? But in case of arrow function क्या होता है, it will not refer to current object. ये फंक्शनल स्कोप के अंदर या ऑब्जेक्ट की स्कोप के अंदर रहता ही नहीं है, इट विल गो टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर नेम वन नहीं होगा तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, ना कि एरर दिखाएगा, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी एन ऑब्जेक्ट है। अभी दिस क्या, विंडो इज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो ये क्या, इट विल ट्राई टू फाइंड द नेम वन इनसाइड विंडो ऑब्जेक्ट। मींस व्हाट डज इट मीन, इट विल कन्वर्ट इट टू विंडो डॉट नेम वन। तो विंडो के अंदर भी नेम वन नहीं है, द नेम वन वेरिएबल इज आल्सो नॉट, ये की इज नॉट अवेलेबल इनसाइड विंडो object, right? Then it will throw in, it will print undefined, not an error, because this refer to now window object. So window dot name one object dot variable key name, if it is there then it will throw, display the value. If it is not there, it will undefined, it will not an error. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So now look सर at डज this. इट मीन्स फैट एरो सिर्फ ग्लोबल स्कोप में काम करता है, ब्लॉक स्कोप या फिर फंक्शनल स्कोप में काम नहीं कर रहा है? कौन सा? सर जो फैट एरो का यूज कर रहे हैं हम लोग यस यहाँ पर। यस, दैट इज एरो फंक्शन। यस एरो सर, एरो फंक्शन, फंक्शन। एरो फंक्शन जब यूज करेंगे उसके अंदर एक प्रॉब्लम तो ये है, आर्गुमेंट्स जो डिफॉल्ट एरे होता है किसी के अंदर भी, कोई भी फंक्शन के अंदर, इट विल नॉट exist inside arrow function. Also this, if you use arrow function and inside that you want to refer any object, refer to the current object, then it will not work, because inside arrow function these always refer to global object, it will not refer to current object. तो फैट एरर जब यूज करोगे और इसके अंदर कोई वेरिएबल एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो ये एरर आएगा, आप समझ नहीं पाओगे ये क्या हो रहा है। इफ यू आर राइटिंग नॉर्मल फंक्शन, मीन्स फंक्शन कीवर्ड,
right? Then it will work properly. But if you use arrow function, it will not work properly, because inside arrow function these refer to global object. Clear? Okay, sir. Yes, sir. So these are the three main difference between arrow function and normal function. First difference, again repeat करता हूँ, याद रखना, the syntax, because it is very short and sweet syntax, you don't have to write the function keywords every time. Second one is argument array is not available inside arrow function. Third one is this always refer to the global object. Whenever you want to refer to in current object using this, then is always refer to what? Global object. Global. Right? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि obj, then it will work because I have statically referred to this object, right? But this refer to global object. यहाँ पे this यहाँ पे print हो रहा है, you can see it is global object. Clear? This always, if you define a function inside an object or method inside an define a method as a key to an object, then we can access all the variable using this, because these always refer to current object. But in case of arrow function, these always refer to end object, so it will not behave as usual or as other function work, other method work, right? तो एरो फंक्शन में तीन डिफरेंस, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हो? Yes or no? Yes, sir. अब this पता चल गया, this Yes. what is this? This always refer to current object, remember. Clear? So there is another way, second way of declaring what? Object. जो मैंने बताया था आपको, पहला, what is the first way to defining or defining an object? Object literal. That is also an object, right? So this is what the constructor function. What is this? This is, you can see the syntax. The syntax is similar to the normal functions. Only difference is you can see whenever you are defining the members of this function, constructor function. Members means members are always property and methods. कोई भी object में members कौन होता है? Properties. These are properties and these are methods, right? So all the members inside these constructor functions, you can see I have defining those as an within this, in starting with this. All the variable you can see from here. All the variable, but all the variable I declare over here with starting with these dot keywords. Again, this refer to what? Current object. अभी मैं इसको डायरेक्ट, यस, अभी मैं इसको डायरेक्ट एज ए फंक्शन यूज करूंगा ना, तो इट विल बिहेव ऑकवर्ड बिहेव करेगा, राइट? सो मैं ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करूंगा, तो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है. पर्सन ये कॉल किया मैंने, तो ये कंसोल वगैरह, ये फंक्शन, इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहा हूँ. देखो ये फंक्शन कॉल किया तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लंबा हो गया इसका. Is it visible clearly? Yes, sir. So let me comment those out first. Now person, I am calling this person function, so it will not display anything. Look, ये function define किया normal function, just forgot about this function body. ये जो syntax देख रहे हो, it is nothing but is normal function, right? But ये function call करूंगा तो इसके अंदर जो भी execution होगा, you cannot access it, right? Yes or no? Yes, sir. Yes.
बिकॉज दिस करके कोई भी मेंबर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, देन इट विल ट्रीटेड एज, तो इसको एक्सेस करने के लिए या कोई भी मेथड इसके अंदर जो ग्रीट है, नेम है, एज, इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्ट के अंदर मीन्स ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देन ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट नेम हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके तो इसको एक्सेस करने के लिए, बिकॉज दिस ऑलवेज रेफर टू करेंट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे तो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन वी कैन एक्सेस, यस और नो। सो उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज न्यू कीवर्ड, राइट। हाउ, सो लुक एट दिस, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्सन फंक्शन को कॉल किया, बट उसके आगे एक न्यू कीवर्ड्स यूज किया। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास, यू हैव टू यूज ए न्यू कीवर्ड, रिमेंबर। सो न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है एंड इट क्रिएट ए न्यू स्कोप ऑफ दिस फंक्शंस। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका फंक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसका एक न्यू स्कोप बनाता है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तब फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है वो प्रॉब्लम करता है आपको, राइट। मीन्स एक बार तुम चेंज कर देते तो दूसरी बार वो चेंज्ड वैल्यू ही मिलता है तुमको। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज सिमिलर टू एन ऑब्जेक्ट, but when you are creating object using new keywords, means you are creating an object with new scope। इसके अंदर ये फंक्शन मतलब इसके अंदर स्कोप होगा ही, बट इसका जो स्कोप है ये लिमिटेड टू दिस ऑब्जेक्ट ओनली, राइट। हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कैसे, मैं बताऊंगा। तो अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करके, तो न्यू देन फंक्शन नेम, क्लियर। Now this object is stored in P, so I can access all the property। जैसे लिटल नोटेशन में कैसे एक्सेस करते थे कि obj.name obj.age, तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं एज, नेम एंड ग्रीट को थ्रू डॉट कन्वेंशन। तो नाउ माय ऑब्जेक्ट इज P, बट दिस ऑब्जेक्ट इज डायनामिक, मीन्स दिस इज नॉट ए फिक्स नेम, राइट। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोई नेम नहीं डाल सकता हूँ, जैसे वहां पे ओबीजे डालता था, याद है। यहाँ पे ऐसे नहीं डाल सकता, यहाँ पे दिस मैंडेटरी रखना पड़ेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखोगे तुम, और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेस होगा, राइट। सो नाउ ऑब्जेक्ट नेम इज P, so I can access all the method and property through p.greet, p.print age, print age is not here right now. So p.greet, now I can access the method p.greet, and inside answer method I can access this dot name and this dot age. Now it will work. Hi, I am CK, I am 30 years old. इसमें कोई डाउट है, ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हेलो, नो सर। नो सर। इसमें भी सिंपल वही की होता है, बट उसको दिस डॉट करके, ये इसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो मेंबर्स कौन कौन होता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं। मेथड मतलब फंक्शन, और ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसको मेथड हम बोलते हैं, राइट। देन to access all the property inside that object, if you want to access any property inside this method which refer to this current object, then we have to use this as I explained, because these always refer to current object. So right now if I am writing accessing this greet method, then now what is this refer to P, clear. If I am putting P, does it work? Yes, it will work.
but now it is static again. If I change the name to W, then what happen? Throw an error. Error, Undefined. because P is not defined, right? That's why we always use this. So whatever the variable name, we are not concerned about it. It will automatically take the dynamically take the object, current object. नेम से कोई लेना देना नहीं है. ये करंट जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको ही रेफर करेगा, उसका ही वैल्यू और वो सब गेट करेगा. क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है? अभी ये काम करेगा. पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और पी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. Yes. So I am creating object using constructor function. Yeah. Here I creating an object using constructor function. But literal notation is also an object, but it is static object. Right? अब मैं पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन को हम पैरामीटराइज कर सकते हैं. yes or no? Yes. So यहाँ पे age and name. सपोज एज में a पास करता हूँ, नेम में n पास करता हूँ. राइट? एज में a पास करता हूँ, नेम में n पास कर रहा हूँ. तो ये क्या होगा कि मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ कि जब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस टाइम में क्या करूंगा मैं? एट दैट टाइम आई जस्ट पास द वैल्यू. बट ये वैल्यू को हम गेट करने के लिए यहाँ पे गेट करना पड़ेगा और दिस डॉट एज में असाइन करना पड़ेगा, लाइक a एंड नेम इक्वल टू n. क्लियर? नाउ आई कैन यूज दिस डॉट एज दिस डॉट नेम. सो अगेन यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा एज इक्वल टू 30 और 30 एंड नेम इक्वल टू ck. So whenever I'm creating here, look at this. Whenever I'm creating this object, I pass this value, and this value go inside this constructor function and assigning to the this dot age and this dot name. So now I can use this age and name inside anywhere inside this object. Right? Now it will work as it was before. If I change this to 20, now you can see instead of 30 it will change to 20. Is it clear? If I change this to Harish, it will change to Harish dynamically, right? Another thing I want to show, if I want to, this is called, I am creating a instance. This is called also, sometimes most of the time we use the word, use this terminology like creating an instance of object. It is not directly object, because object क्या static होता है, जैसे obj मैंने literal notation create किया था, but it is the instance of object. मतलब एक इंस्टेंस है, ऐसे मल्टीपल इंस्टेंस इसका बना सकते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डायनामिक यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन, राइट? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट. इसमें मैंने पास किया 30 और यहाँ पे पास किया ck. नाउ डू यू थिंक दिस एंड दिस विल बी ओवररिटन, ओवरराइट? सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आपको चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ओ, यहाँ पे मैंने ओ कर दिया. सो आई एम क्रिएटिंग एन अनदर इंस्टेंस नेम्ड ओ. इंस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, राइट? सो इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, instance of the constructor function means it is an another object. So you can see, you can print two different value over here. Did you see? Hi, I am ck, I am 30 years old. Here, hi, I am Harish and I am 20 years old. Now देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो बनाया था, ये वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट नहीं हुआ. क्लियर? That is the main beauty of object, creating object using constructor function. अभी ये constructor function कैसे काम करता है? जैसे यहाँ पे कुछ input दिया, ये फैक्ट्री के अंदर बन गया और दूसरा कुछ आउटपुट निकल गया, राइट? आपने कुछ रॉ मटेरियल डाला, वो कुछ भी जो भी ऑपरेशन किया एंड आउटपुट निकाला, राइट? आपने रेड कलर डालेंगे कोई मटेरियल के अंदर तो वो रेड ही निकलेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू निकलेगा, राइट? बट वो रेड पहले डाला था तो रेड को ओमिट करके ब्लू नहीं करेगा. सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर,
कंस्ट्रक्टर का मीनिंग वही होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन पता है ना आपको, तो इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। वो वर्ड से, फ्रॉम दिस वर्ड इट इज इनहेरिटेड, दैट्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्लियर? सो दिस इज द ओल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन ES5, बट इन ES6 जैसे ES6 आया जब से, तब से लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते, जो क्लास जो तुम C++ में पढ़ के आए हो, राइट? इज इट क्लियर? सॉरी, यस सर। राइट? यस सर। सो इट इज क्लियर। सो कोई भी इंस्टेंस बना सकते हो इसमें, और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास करोगे और कुछ भी आउटपुट निकलेगा। जैसे फंक्शन में तुम कोई भी पैरामीटर पास करते हो, वो आउटपुट ऐसे ही बिहेव करता है। सो ये ऑब्जेक्ट में भी ऐसे, देखो ये सेम स्कोप के अंदर अभी एज भी है, नेम भी है, यहाँ पे भी एज भी है, नेम ही है। तो यहाँ पे सपोज में इफ आई वांट टू कॉल W ऑब्जेक्ट, राइट, इवन इफ ये यहाँ पे कॉल करूंगा ना इसके बाद भी, तो इट विल, द रिजल्ट विल बी सिमिलर। ऐसे नहीं कि मैं ओवरराइड करने से पहले कॉल किया था एंड आई कॉल इट आफ्टर क्रिएटिंग अनदर इंस्टेंस और आफ्टर पासिंग अनदर वैल्यू, मैं ये प्रिंट कर रहा था इसलिए वो दिख रहा था। नो, लुक, मैं कहीं पे भी इसको यूज करूँ, इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी ये दोनों को यूज करूँ, नाउ दिस इंस्टेंस आर कंप्लीटली सेपरेट स्कोप। न्यू मीन्स न्यू स्कोप क्रिएट करके ये ऑब्जेक्ट बनता है। सो वट एवर वैल्यू यू पास इट, देन वट एवर द ऑपरेशन इट perform over here will store in this W object only, right? Then W object you can access anywhere. आपको ऐसा लगता है कि कोई सोच रहा होगा कि सर आप तो ये ऊपर कॉल कर दिए, इसलिए पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद ये कॉल कर रहा हूँ तो इसलिए वो नेक्स्ट टाइम यही ऑब्जेक्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट? नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। आप ये W को कहीं पे भी हम कॉल करोगे, कहीं पे भी, कितनी बार, ऊपर नीचे कहीं पे भी, सो इट विल वर्क इन द सेम वे, राइट? क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अभी जो ऑब्जेक्ट लिटरल था, इन ऑब्जेक्ट लिटरल व्हाट यू डिड एक्चुअली, यू यूजुअली डू लाइक, आप क्या उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, व्हाट डज इट मीन? आप सपोज कोई और एक की ऐड करना चाहते हो, तो हम डायरेक्टली क्या करते थे, क्या करते थे कि ओबीजे डॉट जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा ओ डॉट, ठीक है, इज एडमिन ऐड नहीं किया था आपने, याद है? तो मैं कोई अदर की you want to, if I want to add any another key which is not initially there inside the object in object literal notation, then I can directly obj dot isAdmin, I can add isAdmin as an another key and I can assign any value, like yes, clear? Yes or no? ऐसे कर सकते हैं आप? हाँ। But in constructor function, how can I do this? If I want to extend this, means if I want to add any keys and or sorry property or method dynamically, then how can I do this? Through this prototype keyword. What is it? Prototype. So कैसे होता है इसमें? For example, I have just forgot about this W. Sorry, the second one. So let's see. I want to add, दोनों रखता हूँ, चलो। Look, so I want to extend or add another property. So कैसे मैं ऐड करूंगा ना, W dot prototype dot, what is the variable name if you want to address equal to right. So you can let me access it, yeah, whether it is working or not.
sorry. Look, now I can access it, right? So अब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको. What happened अब भैया कि मैं यहाँ पर एक्सटेंड किया. what I extend अब भैया ना, प्रोटोटाइप कीवर्ड्स यूज करके मैंने कोई और एक की और प्रॉपर्टी ऐड किया. What is the name of the property? Address. And I initialize and assign the value to that key. Address is Ahmedabad. Clear? So now I can access this address property using this W object, right? But ये पहले मैं address access करना चाहूँगा without prototype, then what will happen? Undefined, because till now I have not created any properties inside this constructor function portion. उससे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ, right? But as soon as I create it, I can access it. If I put it over here, then I can access it easily. Same inside this also I can access. Here also I can access, right? ये W के जगह में मैं O कर दूंगा तो I can also access it. Did you see? But make sure ये person.prototype.address, what does it mean? मैं जब भी यहाँ पे एक्सेस करने जाऊंगा ये ऑब्जेक्ट को, उससे पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा, इससे पहले मुझे असाइन करना पड़ेगा. मैं उसको सपोज नीचे रखूंगा, यहाँ पर यहाँ पे रखूंगा, then it will display o.address, it will display, but w.address it will not work. Yes or no? Look, w.address, because whenever I accessing this address, whenever I'm accessing this address with w object, at that time I have not created any property inside this constructor function dynamically. Yes or no? So if you want to extend multiple property inside a constructor function, you can use the constructor function name dot prototype dot any method also you can define in this way. Like let's print age like this. Sorry. Let's say I'm extending and print age. Right, and inside print age I can defining this function console.log age print करना है मुझे, right? I am, instead of using curly braces, I can use backtick, right? I am, then in case of variable, I can write something like this dot age. Years old. Okay. So let's call this print age. काम करता है कि नहीं करता, देखते हैं अपने. So I am 30 years old. आया? Yes or no? प्रिंट एज यहाँ पे कंसोल किया, जो ये प्रिंट कर रहा है. लेट और तो कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट कर रहा हूँ, ये बंद कर देता हूँ. क्लियर? यस सर. तो एड्रेस यहाँ पे जो कंसोल कर रहा हूँ वो अनडिफाइंड दिखा रहा है. व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस डिफाइन नहीं किया. डिफाइन प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन किया है. ओ में की, राइट, ओ में नहीं है. सीक्वेंस देखो,
मैं कहीं पे भी करूँ, ओ में या डब्ल्यू में नहीं है, मैं जब भी Yes, sir. ये Yes, sir. कॉल करूंगा वो कोई भी इंस्टेंस के अंदर वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा. बट मेक श्योर बिफोर आई एम एक्सेसिंग दैट प्रॉपर्टी through this instance, whether it is O or whether it is W, but before accessing this I have to declare that key. So this is the declaration of properties dynamically inside in constructor function. क्लियर. नाउ आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, ये फंक्शन डिफाइन किया डायनेमिकली थ्रू प्रोटोटाइप. ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है आई एम 30 years old. अभी ओ के थ्रू एक्सेस करूंगा तो मुझे ओ डॉट प्रिंट एज, तो ओ में कितना पास किया मैंने, आई पास 30, राइट. इफ आई वांट टू एक्सेस दिस थ्रू डब्ल्यू, देन व्हाट वुड बी द आउटपुट. Sorry, what will be the output? 20, because here I pass 20. So W object जब instance create होगा तब value assign कर ली होगी. It will assign the value the name as a Horace and age is 20. So whenever I execute the print age, it will take this dot age will take 20. Clear? इसमें कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ सकते हो. डायनेमिकली कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, वी कंक्लूड द कंक्लूजन इज हाउ वी कैन डिफाइन ए ऑब्जेक्ट, डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन हाउ वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, राइट. ये पता चल गया यूजिंग दिस, तो हम एक्सेस कर सकते हैं. अगेन इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट प्रॉपर्टी और you want to add any properties or method dynamically to that constructor function, then you can use the function name or constructor function name dot prototype dot property or method, right. And then you can just access it. After that you can instantiate this object, might be before, but before you accessing this property or method, you have to first initialize it, just like using prototype I have mentioned here. Clear? And और क्या सीखे इसमें कि whenever I am instantiating any object, the value we are passing to the constructor function is limited to that, the value and scope will be limited to that particular instance or particular object. It will not override to then another instance or another object. So now everything is clear. Yes. आपको सपोज Yes, याद sir. नहीं रहता तो ये वीडियो फिर से देखने का, नोट डाउन करने का, प्रैक्टिस करने का, जो भी करने का, बट दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू. सो इज इट क्लियर? सर जो प्रोटोटाइप करके की डिफाइन किए तो वो भी मेंबर कहलाएगा सर हाँ, कंस्ट्रक्टर वो भी फंक्शन का मेंबर फंक्शन ही एड्रेस. है. यस, इट इज देयर आल्सो मेंबर्स. सो मेंबर्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. So all together, all of them are members to this constructor function. वो constructor function की members होते हैं. ओके. प्रॉपर्टी वेरिएबल को प्रॉपर्टी वहां पे टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, और मेथड्स तो पहले बताया था, फंक्शंस का जो नॉर्मल फंक्शन होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं. बताया था मैंने. Yes, sir. कोई फंक्शन बोलता है, कोई मेथड बोलता है, बट तुम कंफ्यूज नहीं होने का. बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तुम जानते होंगे कंसेप्ट, बट स्टिल यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन ओनली बिकॉज ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी दे आर आस्किंग फॉर, राइट. दैट्स व्हाई ये क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए. एंड दिस इज द वे, ओल्डर वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ES5 में ये काम करते थे हम, तब ये यूज करते थे, बट ES6+ वी आर यूजिंग क्लास. बट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेट्स मूव फर्दर. नाउ कॉल, अप्लाई एंड बाइंड. अगेन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड में कल फिर एक्सप्लेन करूंगा. आज ये गेटर सेटर एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज आज आपका दिमाग जाम हो गया होगा ऐसा लगता है मुझे. ओके. अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको समझ में आ गया, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बताया यहाँ पर. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ पे क्या कि डायनेमिकली मैंने जैसे दिखाया था एग्जांपल, यू कैन पास डायनेमिकली वैल्यू
and you can get different output for different instance of the object. Yes or no? But जब अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राइट? नॉर्मल ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? नॉर्मल ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट लिटरल, राइट? सो यहाँ पे नेम करके एक वेरिएबल दिया जिसका whose value will be ck. So object literal है, yes or no? Just forget about this first for now. ck, age, these are the properties or keys of that object literal. This is method format name, right? तो चार प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी है और एक मेथड है. तो ये all keys are statically valued. You can assign value statically. You cannot change it if it is required. Yes or no? चेंज कर सकते हो कभी भी. अब मैं इसमें चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सपोज obj.name कंसोल के अंदर. Just for now, forget this. console.name. Now it will show ck. obj has already been defined. अरे बाबा, obj1 is ck, राइट? अभी मैं इसके अंदर चेंज कर दिया कि हरेश, तो चेंज हो गया. अब कहीं पे भी प्रिंट करूंगा वो हमेशा हरेश ही दिखाएगा. अब सीके नहीं मिलने वाला है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ डायनामिक करने की फैसिलिटी नहीं है. दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आया है अपने पास, राइट? बट इसमें भी एक तरीका है जो हम कुछ हद तक हम डायनामिक कर सकते हैं. कैसे? लुक एट दिस. जो नेम प्रॉपर्टी है, मुझे ऐसे करना है, कुछ लॉजिक लिखने का नेम के लिए. जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो ये जो सेटर एंड गेटर बोलते हैं उसको, सेटर एंड गेटर मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी को हम कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं डायनामिकली, मीन्स मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया. यहाँ पर क्या किया मैंने, सेट नेम, ये कंडीशन रखा कि वैल्यू जब नेम में कोई वैल्यू असाइन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या करेगा, नेम लिख लेगा, यहाँ पे ck असाइन कर देगा, राइट? देन रिटर्न, ओके. देन दिस डॉट माई नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू यहाँ पे बाहर से पास हो रहा है वो नहीं मिलेगा, वैल्यू इक्वल टू कुछ भी नहीं मिलेगा. तो हमको क्या होगा, ck बाय डिफॉल्ट असाइन करेगा. देन गेट अगेन नेम मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है. अब अभी देखो क्या है, सिंटेक्स में बताता हूँ. इस हेडर गेटर का सिंटेक्स कैसा है, ये जो नेम है ना एज ए मेथड दिख रहा है या फंक्शन दिख रहा है, ये एक्चुअली की है, ऑब्जेक्ट की है. जो नेम करके प्रॉपर्टी था, नेम करके जो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखा रहा था मैंने, वही की है. बट उसको इस तरीके से लिखा जाता है गेटर फंक्शन जब यूज करते हैं, सेटर फंक्शन. तो ये वैल्यू में सेट करने के लिए ऐसे कीवर्ड सेट लिखते हैं, फिर ये की का नाम, देन एज ए फंक्शन पैरामीटर यहाँ पर पैरेंथिस लिखते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू गेट करना है यहाँ पे जब असाइन करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल टू चंद्रकांत असाइन किया मैंने यहाँ पर, राइट? तो जैसे मैं ये प्रॉपर्टी में असाइन किया, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉलिंग वगैरह नहीं है, राइट? ये प्रॉपर्टी में मैं क्या किया, आई जस्ट असाइन दिस वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम एज एन चंद्रकांत. यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है देखो, और नेम प्रॉपर्टी को मैंने एक वैल्यू असाइन किया. तो ये वैल्यू विल बी कैच बाय दिस वैल, ओके. एंड ये ट्रिम मतलब कोई स्पेस होगा तो उसको रिमूव करके मैच करेगा. सपोज ये स्पेस है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करके स्पेस कर दिया तो उसको ट्रिम कर देता है. ट्रिम क्या करता है, स्पेस को रिमूव कर देता है, ट्रिम फंक्शन, राइट? तो ये ट्रिम निकाल भी दे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, अपने को स्पेस नहीं देंगे हम. तो वैल इक्वल टू एम्प्टी होगा, देन क्या करेगा, सो दिस डॉट माई नेम इक्वल टू ck बाय डिफॉल्ट. या कोई कस्टम लॉजिक इसके अंदर आप लिख सकते हो, राइट? कुछ भी लिख सकते हो. सपोज ये या इसके जगह में कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये सपोज रिमूव कर दिया, अपना शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में रख सकते हैं. क्या है ये, याद है मैंने बताया था? सो वैल्यू में सपोज एम्प्टी आता है या नल आता है या अनडिफाइंड आता है तो वो ck ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ओके.
एंड गेटर में भी देखो सेम प्रॉपर्टी नेम नेम दिया हुआ है, एज ए फंक्शन लिखा हुआ है, एंड ये रिटर्न करता है क्या है, दिस डॉट माई नेम। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इसका नाम रख सकते हो, बट अल्टीमेटली इट विल रिटर्न एज ए नेम। क्लियर? ये सुनो, क्लियर ना? तो गेटर सेटर क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू असाइन करूंगा, अभी सपोज कुछ भी असाइन नहीं करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो सीके ले लेगा। देखो सीके, क्लियर? अभी कुछ भी पास नहीं किया तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा कि ये सीके ले लेगा। अब इफ आई पास समथिंग एल्स एसएसएस, देन इट विल थ्रो डिस्प्ले एसएसएस, राइट? तो मैंने गेटर सेटर में क्या कि ऑब्जेक्ट लिटरल में भी कुछ डायनामिक मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। क्लियर? यस है ना? तो गेटर सेटर का मतलब यही है कि यहाँ पे मैं डायनामिकली कुछ वैल्यू असाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ, रादर देन इनिशियली पहले से मैं असाइन करूँ कुछ भी। कुछ कस्टम लॉजिक लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे सपोज मैं लिखूंगा कि इफ वैल इक्वल टू सीके, देन सीके प्रिंट नहीं करने का, कुछ और प्रिंट करने का। इफ वैल इक्वल टू 10, देन इट विल डिस्प्ले 100, 1000, जो भी है, राइट? तो कोई भी कस्टम लॉजिक थोड़ा बहुत लिखना है तो ये फंक्शन बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं, एंड ये सेट करेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे, दैट्स इट। ये सिंटेक्स आपको खाली याद रखनी है। तो नॉर्मल गेटर सेटर ऐसे काम करता है। जो ऑब्जेक्ट लिटरल में भी गेटर सेटर कैसे काम करता है आपको पता चल गया? क्लियर? यस सर। ओके, सो कल अगेन ये इस कंप्लीट करेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड। इसको थोड़ा डिटेल में समझाना होगा, 10-15 मिनट और लगेगा, तो ये समझाएंगे, फिर हम जाएंगे एरो मैनिपुलेशन फंक्शन। क्लियर? चलो लेट्स कंक्लूड। जो भी डाउट होगा आप प्रैक्टिस करो और कल मुझे लेके आना। और ग्रुप में कोई पूछता नहीं, ऐसा लगता है कि